all of you. And my today's agenda and last portion of your modulation scheme is M-array. Okay. Since we have already gone through the basic concept of Gram-Schmidt procedures, what the role of Gram-Schmidt procedures in real-time applications, then we have gone through all the modulation scheme: ASK, FSK, BPSK, QPSK, and now we are in the positions of M-array. M-array means if any type of modulations, if you can deal with this M-array, right? And a lot of disadvantages associated with the different type of modulation scheme. I will highlight in later phase and how the M-array or MSK will really beneficial for analysis and to reduce that type of problem associated with the modulation scheme. So as far as the research concerned, M-array is really important. And every time IES exam and GATE exam or any competitive exams, NET exam, uh, they should ask about the some question on M-array. Rather than the other modulation scheme, they are really focused about the M-array. He thought if you are able to know the M-array mathematical calculations, then you should also calculate the other modulation scheme. So no issue. As far as um, coherent detections and coherent generations, we have already studied all type of modulations. Hopefully, when you have gone through all the videos I have already uploaded since only since last class I will upload in this weekend. Otherwise I have already uploaded all the videos. Okay. So I'm going to share my screen, and then today's agenda is M-array, and M-array is easy as compared to other mathematical analysis. So if you all are comfortable, then I will start this concept. Okay. So as I already told, this is not possible. You will study every modulations, right? I think 8 PSK, 16 PSK, 32 PSK, and like that. Okay. So the question is why you are moving towards the higher modulations. So in last class we have proved that if you will move from lower modulation scheme to higher modulation scheme, then the bandwidth utilization is very good, right? Bandwidth utilization is very good, means spectral efficiency is good. So as far as the research concerned, and when you will analyze some communication system, then you should also analyze the spectral efficiency of the channel. If the spectral efficiency is very good, of the channel is really fantastic. And at the same time, spectral efficiency means high bandwidth, right? So bandwidth utilization is really important for all type of modulations. That's why QPSK is a better modulation scheme as compared to other modulation scheme, because bandwidth utilization is good. And I'm not again explain all these details because I've already proved mathematically generation and detections everything. Okay. So now as far as the M array, so please first write down the what is the M array. So it is defined as the ratio. It is defined as the ratio of data rate to the channel bandwidth. It is defined as the ratio of the data rate to the channel bandwidth. Okay. Uh, it is defined as the ratio of data rate to the channel bandwidth. Data rate, that means RB, and channel bandwidth means B, right? It is the ratio. So RB by B is is defined as the first parameter of M array. RB by B, डेटा रेट टू द चैनल बैंडविड्थ. जो भी चैनल बैंडविड्थ होगा और जो भी डेटा रेट मिलेगा उसका रेशियो जो होगा, दैट मींस RB by B is also known as spectral efficiency. So please also write down. It is also called a spectral efficiency. It is also called as a spectral efficiency. And a spectral efficiency का अब यूनिट क्या होगा? सो ध्यान से देखिएगा. कौन बताएगा मुझे?
कौन बताएगा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का यूनिट क्या होना चाहिए? हु विल टेल? स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मतलब आरबी बाई बी, राइट? आरबी बाई बी। सो सर आरबी का यूनिट होता है बिट्स पर सेकेंड एंड हाँ बैंडविड्थ इज इन हर्ट्ज। हाँ, so that's why bandwidth is always measured in frequency, right? That means 2 FM, हम यदि जनरल देखते हैं तो 2 FM है, या बैंडविड्थ हम बोलते हैं FH माइनस FL। सो फ्रीक्वेंसी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डील्स इन द हर्ट्ज। और बीट रेट तो जानते ही हैं, बिट्स पर सेकेंड होता है, राइट? इसलिए कभी भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और एम एरे का जो पहला पैरामीटर है डिफाइंड का, दैट इज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। एंड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और एम एरे इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरबी बाई बी, मतलब बीट रेट और उसका चैनल का बैंडविड्थ, दैट इज आरबी बाई बी। ओके इतिका, इतिका समझ में आ रहा है? इसरित, Yes, sir. हाँ इसरित, रोल नंबर 19। Yes, yes, sir. RS हाँ, समझ तो आ रहा है। क्या है यूनिट? आरबी बाई बी, और आरबी का यूनिट क्या होता है बेटा? तो आरबी का बिट्स पर सेकंड। बिट पर सेकेंड। और किसी भी बैंडविड्थ को हम एनालाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी के तरह, पता है ना? यस सर, यस सर। So that's why beats per second per hertz. So very good. So मुझे इस तरफ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अभी। अभी तो आपको याद रहेगा, बट बाद में भूल जाएंगे आप। अभी थोड़ी देर बाद मतलब एक दिन बाद में पूछूंगा, बोलेंगे अच्छा 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 स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का क्या यूनिट होता है? तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आरबी बाई बी, एंड आरबी इज द बिट्स पर सेकंड एंड बी इज द बैंडविड्थ इज पर हर्ट्ज। सो राइट डाउन रो इज इक्वल टू आरबी बाई बी। एंड जब भी आप कोई कम्युनिकेशन में रिसर्च करेंगे इन ए कम्युनिकेशन फील्ड, either optical, either free space optics, either wireless, either IoT, और किसी भी में रिसर्च करेंगे, तो उस सिस्टम का आपको स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालना सबसे पहला टास्क होता है, राइट? स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी अच्छी है, दैट मींस आपका जो आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, तो एज फार एज द एमटेक सिलेबस, मेरा ये भी फर्ज है कि आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि क्या क्या आपको बाद में चीजें जरूरत पड़ेंगी, राइट? सो जितने भी आप रिसर्च जब आप पेपर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो होपफुली यू अंडरस्टूड द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी एंड फैंटास्टिक। यदि आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट अब मैं डिफरेंट एरे का यूज करूंगा इस स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो सबसे पहले बीपीएसके का निकालते हैं। सो राइट डाउन बीपीएसके। सो आप लोग को सबको पता है m इजकल टू 2 पावर n होता है। लेवल इज पता है आपको? ऑल लेवल का रिलेशन बिट के साथ क्या होता है? वेर m इज द लेवल, कभी कभी एल भी लिखते हैं, बट m एरे पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं m को m लेके चल रहा हूं, नॉट l। सो राइट डाउन m इजकल टू 2 पावर n होता है। सबको पता है ना बेटू? एवरीवन, जब जब क्वांटाइजेशंस करते हैं, क्वांटाइजेशंस में बिट का जो हम लेबलिंग करते हैं, वोल्टेज लेवल, एल मतलब वोल्टेज लेवल और एन इज द बिट्स। सो दोनों का रिलेशन निकालने के लिए हम एल इजकल टू 2 पावर एन पुट करते थे। याद है सबको? होपफुली सबको याद होगा। नहीं होगा तो मैं ये भी प्रूफ करूंगा जब मैं ये यूनिट पढ़ाऊंगा, तब मैं वो भी थोड़ा सा पढ़ाना है आपको, पीसीएम सिस्टम पढ़ाना है, तब मैं बताऊंगा। सो यदि सबने पीसीएम सिस्टम पढ़ा होगा ना एज इन बीटेक, राइट? सो रोल नंबर 10 पढ़ा है बेटू? एल इजकल टू 2 पावर एन, रोल नंबर 10। हाँ बेटा, सबा आपने पढ़ा है ना एल इजकल टू 2 पावर एन का रिलेशन? ओके, सो वेरी गुड। यदि पढ़ा है तो हम आगे चलते हैं। सो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालना है आप लोगों को। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालना है, पहले लिख लीजिए कितना एम एरे होगा। तो प्लीज क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एम एरे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम if modulation is BPSK, second one is a QPSK, third one is a 8 array PSK, and fourth one is a 16 array PSK. So phase shifting keying का BPSK, QPSK, 8 array BPSK and 16 array PSK। तो इसमें m का वैल्यू क्या क्या होगा बताते चलिए। 2 4 8 16। 2 4 8 16। यस, कौन बोल रहे हो? मुर्तजा सर। हाँ मुर्तजा। सो वेरी गुड। सो बहुत ईजी है। सो हमने कुछ नहीं करना है। बीपीएस के मतलब 2 पावर n इजकल टू m, दैट इज m इजकल टू 2 एरे।
2 पावर 2 आ गया बेटू, तो m इक्वल टू 4, 8 आ गया यानी 2 पावर 3, 8 एम एरे, और 16 एरे पीएस का मतलब m इक्वल टू 16, या जो होता है ना वही m एरे होता है, राइट। तो इसलिए बोलते हैं इसको m एरे। यदि आप देखें बीपीएस के मतलब 2 पीएस के तो 2 एरे, क्यूपीएस के मतलब 4 पीएस के दैट मींस 4 एरे, 8 एरे लिखा ही हुआ है तो m इक्वल टू 8, 16 एरे लिखा ही हुआ है तो m इक्वल टू 16। क्लियर? तो मुर्तजा वेरी गुड। और कोई किसी को डाउट है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा बिल्कुल। एनीवन हैव द डाउट प्लीज लेट मी नो। सब ठीक है सबको? रोल नंबर 18, रोल नंबर 18, हु इज रोल नंबर 18? चरित। यस सर। हाँ सही है बेटू, आगे चले चलित। यस सर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहला आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, एम एरे पीएस के सिग्नल का पहला केस एनालिसिस करेंगे। और पहला केस एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे, राइट डाउन केस 1, केस 1। केस 1, एम एरे पीएस के सिग्नल। पहले हम एम एरे पीएस के सिग्नल का एनालिसिस करेंगे। सो प्लीज एम एरे का केस 1 पीएस के सिग्नल एनालिसिस करने वाले हैं हम, उसके बारे में हम देखते हैं एम एरे पीएस के सिग्नल का। और इसका हमें निकालना है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। सो फाइंड द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। सो जनरल इक्वेशन आपको निकालना है एम एरे पीएस के सिग्नल का स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। सो कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। सो फॉर्मूला होता है बेटा एम एरे पीएस के सिग्नल का, बैंडविड्थ इक्वल टू, राइट डाउन बैंडविड्थ इक्वल टू बी इक्वल टू 2 by ts, 2 by ts। ts तो पता है ना क्या होता है? बिट पीरियड होता है, सिंबल पीरियड होता है, पता है ना सबको? Symbol period. सिंबल पीरियड। सो b इक्वल टू 2 by ts लिख लीजिए, एंड वेयर ts इक्वल टू tb log base 2m, वेयर ts इक्वल टू tb log base 2m, प्लीज राइट नाउ। सो इतना मैंने बता दिया, तो सब स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालिए प्लीज। मैं जिसे पूछूंगा उसको कैलकुलेट करके बताता है। b इक्वल टू 2 by ts एंड ts इक्वल टू tb log base 2m। तो आप मुझे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकाल के बताइए। तो अपने अपने नोटबुक में कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ऑफ पीएस के सिग्नल क्या होगा, फाइनल वैल्यू। मैंने तो किया है, मैं तो बता दूंगा, बट आप भी आपको बताना है। तुहा मोहम्मद, रोल नंबर 16। तुहा मोहम्मद। फरहा खान, रोल नंबर 15। एक्सक्यूज मी सर। हाँ साइमा बोलो बेटा। सर क्या आप फॉर्मूला रिपीट करेंगे? मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। पहला वाला शुरू वाला याद देखा था आपने बेटू? बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है? सर बस यही वाला है। स्पेक्ट्रल नहीं, पहले ये बता दीजिए, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी पहले लिख लीजिए। आरबी बाई बी होता है बेटू। यस सर, यस सर, तो आरबी बाई बी, बी का वैल्यू चाहिए आपको बेटू, है ना? यस सर। तो बी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं केस 1 में मेरे पीएस के सिग्नल का बी का वैल्यू है बेटा 2 by ts, लिख लीजिए। क्लियर? और ts का वैल्यू है tb log base 2m। बस इतना ही मैं बता सकता हूं मैं, है ना? सर आ गया ना, सब कुछ मिल गया ना बेटू आपको? यस सर। हाँ, आप कैलकुलेट कीजिए। यदि खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर कर नहीं मतलब इजी है, बहुत इजी है। log to the base 2 of m, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या है आया? log to the base 2m। सर log to the base 2m upon 2। हाँ बाई 2। yes sir, वही by 2 sir, divide by। अच्छा log base 2, हाँ log base 2m मैंने by 2। grade- यस, यस सर, मैंने यस सर सर। बोला था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और किसका किसका आ गया?
और किसका आ गया? चलो अंकिता, रोल नंबर 1 Yes, sir. आ गया? Yes, sir. क्या आया? Sir, log to the base 2m by 2. आईओसी, आईओसी। हाँ बेटू, क्या आया? आवाज नहीं आ रही है आपकी। जसप्रीत, कैलकुलेट करो आराम से। जसप्रीत, सर हाँ क्या आया? log base 2m upon 2. ठीक है। आयुषी, आप कैलकुलेट कर रहे हो अभी? Yes, sir. तबीयत ठीक नहीं है क्या? No, sir. हाँ तो तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो बेटू। No, sir. It's all right. Sir, done. हाँ, क्या बोल रही हो इतिका? सर हो गया। ठीक है। नीना वर्मा, रोल नंबर 8 Yes, sir. आ गया बेटू? Yes, sir. तो वेरी गुड, आ गया सबका। तो मैं आगे चलूं, लास्ट पूछ लेता हूं मैं। साइमा रशीद, रोल नंबर 11 एंड शेफाली कौल। Yes, sir. शेफाली, Yes, sir. so the question is how you can calculate the spectral efficiency of the BFSK system is okay. मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। We are able to calculate. It's fantastic. So जनरल हमने स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकाला, बाद में हमने FSK केस के लिए निकाला और हमने कैलकुलेट कर लिया। सो राइट डाउन, क्वेश्चन लिख लीजिए सब कोई, क्वेश्चन लिख लीजिए। जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक मिनट टाइम दे देता हूँ। जिसका नहीं हुआ है, हो सकता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरे का हो गया, मेरा नहीं हुआ है, तो प्लीज आप यहां से रेफर कर लीजिए। कुछ नहीं किया मैंने। B इक्वल टू होता है 2/TS, TS इक्वल टू मैंने लिखा है आपको सबको TB log base 2m। सो B इक्वल टू होगा 2/TB log base 2m, और वी नो दैट RB इक्वल टू 1/TB, राइट। सिर्फ एक ही ये चीजें हैं जो मैं नहीं दिखाना चाहता था, बट आप लोगों ने बार बार बोला इसलिए मैं स्लाइड दिखा लिया। इसमें आपको पुट करना था TB इक्वल टू 1/RB, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिया है। चरित्र, क्वेश्चन सब सॉल्व किया था ना RB इक्वल टू 1/TB पे ग्राम स्मिथ प्रोसीजर्स में। Yes, sir. हाँ, तो मैं ये चाहता था कि ना दिखाऊं स्लाइड, आप लोग खुद करो, बट मे बी आपने नहीं देख के किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। सो RB इक्वल टू 1/TB, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार आएगा। कभी भी जो निकालना होगा उसमें TB नहीं देगा या RB नहीं देगा, तो दोनों का रिलेशन होता है इनवर्स, उसको पुट अप कर लीजिएगा। सो बैंडविड्थ इक्वल टू 2, TB ऊपर चल 1/RB है तो ऊपर चला जाएगा RB log base 2m, और RB अपना कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा B इक्वल टू 2RB by log base 2m, और RB by B जो है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है। सो मैं अभी बता दिया था कि RB कैंसिल हो जाएगा। सो log base 2m by 2। सो फैंटास्टिक, इस बॉक्स में बना दीजिए स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ऑफ FSK सिस्टम के लिए। वो सिंपल है, वैल्यूज log base 2m by 2। वेरी गुड। तो सॉरी, FSK बोल रहा हूँ, फेज शिफ्टिंग किंग के लिए केस 1 जो है हमारा, केस 1 है PSK, याद रखिएगा PSK सिस्टम के लिए। ओके, सो राइट डाउन, आप न्यूमेरिकल लिख लीजिए आज का पहला न्यूमेरिकल। सो फाइंड द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ऑफ BPSK, UPSK, 8 array PSK and 16 array PSK प्लीज कैलकुलेट कीजिए। Sir, 0.5, 1, 1.5 and 3. एक मिनट में देख लेता हूँ, निकालो सबको। 16 array का 3 आ गया। Sir, जी sir.
टू गलत टू है। सर, टू सर, टू सर, टू सर। हाँ 0.5 1 एंड 0.5 1 1.5 एंड 2। क्या हो रहा है, कैसे से इंक्रीज हो रहा है बेटू? सर 0.5 से। बताऊंगा लॉजिक अभी मैं। जीरो पॉइंट फाइव, हम्म 1.5 एंड बोलो बोलो। सर 0. फिर से बोलना बेटू। सर बीपीएसके का 0.5 0.5, 1, हम्म 1.5 एंड 2। वेरी गुड। और जिसने जिसने निकाल लिया है बेटू बताइए। साध्वी क्या आया बेटू? रसिका, रसिका बताओ। सर डन सर, बीपीएसके का 0.5, क्यूपीएसके हम्म का 1, 8 एरे का 1.5 एंड 16 एरे का 2। तो आप लोगों ने गेट दिया था, गेट दिया है कभी, गेट एग्जाम? अब चुप क्यों हो गए? दिया जी है ना? सर, दिया है। हाँ। हाँ तो हाँ आपने देखा होगा कि जब आपने प्रिपरेशन किया होगा तो अल्टरनेट या 2 साल में एक बार स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जरूर पूछते हैं, और वो जी पूछते हैं सर। हमेशा अमेरिका ही पूछते हैं। तो यदि आपको ये कंसेप्ट है तो आप नेट, जिसने नेट का एग्जाम नहीं फॉर्म भरा है अगले साल के लिए जो जनवरी में होने वाला है या फरवरी में, सो प्लीज नेट और गेट का फॉर्म भरते रहिए, है ना, और थोड़ा थोड़ा सा तैयारी करते रहिए। नो डाउट अब तुरंत अभी तो एडमिशन ले लिया है, लोड भी होगा, तो ट्राई कीजिए एक एक सब्जेक्ट करने का, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट कर दे गवर्नमेंट, है ना, किसी भी जॉब के लिए या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, फ्यूचर में शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हो सकता है गेट को वो कर ले। सो ऐसा नहीं है कि आप गेट नहीं है तो आप अच्छे नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो नन गेट है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, रिसर्च में मैंने देखा है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि गेट वाले अच्छे नहीं हैं, उनका वो भी अच्छे हैं। सो मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट यू शुड दिस इज योर फर्स्ट ईयर, यू कैन गिव 1 ईयर मोर। और इसलिए नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए देखें या आपके लिए पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा। सो आपने देखा होगा कि एवरी इयर्स एक्सपेक्टेड रिसेंसी पे क्वेश्चन आता ही है, राइट चरित? चरित राइट? कबन यस सर, यस सर। सो कमनदीप आपका माइक ठीक हो गया, रोल नंबर 4। यस सर। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए कमनदीप। ओके, सो बन गया कमनदीप, सॉल्व कर लिया आपने? यस सर। तबीयत ठीक है ना? यस सर। अच्छा, खाना वाना नहीं मिल रहा है घर पे लग रहा है? और सेक्सी से थोड़ा कोल्ड है। अच्छा कोल्ड है, फिर ठीक है, नहीं तो मुझे लगा कि इतने दिन घर पे रह गए ना, तो अब तो हो गया, जितना भी प्यार था घर में सब हो गया। अब सब बोलते हैं भाई अपना रास्ता देखो, सब आगे की तरफ देखो भाई, कितने दिन हमारे वहीं बैठे रहोगे, है ना? अब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके सबके साथ हो रहा है अभी कि अब पता चल रहा है कि कितना प्यार था हमारे घर में अपने बीच में, कि पूरा सुबह से उठ के देख ला, अरे कुछ पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है ना करता है ना? मुर्तजा सही बोल रहा हूँ मुर्तजा? घर वाले नहीं बोलते हैं घर से निकलो अब? मुर्तजा रोल नंबर 6 यस सर, यस सर। अब बोलते हैं कि अब देखिए रास्ता अपना? ऑलमोस्ट सर। ओके, तो ओके, सॉल्व कर लिया मुर्तजा इसको? मुर्तजा आपने सॉल्व कर लिया? यस सर, पहले ही तो बोला था। हाँ वेरी गुड। सो अभी हमने किसका सॉल्व किया था? हमने बीएफएस के सिस्टम का। अब हम देखेंगे इसको, सॉरी बीपीएस के सिस्टम का, फेज शिफ्ट कीइंग का। अब हम सेम एनालिसिस देखेंगे बेटू, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कीइंग का। सो राइट डाउन केस 2 इज, किसी को नहीं बना क्या? तो किसी को नहीं बना तो मैं शेयर कर देता हूँ थोड़ा 1 मिनट के लिए। सो होपफुली बंसिका हो गया था सर सॉल्व? So write down BPSK, QPSK, 8 array and 16 array.
So expected efficiency log base 2/2, 4 and 8 and 16. So यहाँ पे Hello? सबको जो भी आपका वैल्यूज है उसमें प्लीज इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अभी इसको कि इसमें हम कुछ देखने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं अभी जब ये पूरा कर लेंगे तो एफएस के करने के बाद. So this is the comparative analysis M-array. So 0.5, 1, 1.5 and 2, right? So this is the comparative analysis. Okay. Now case 2 for M-array FSK signal. So M-array FSK signal. Please write down M-array FSK signal. M-array FSK signal. तो यहाँ पे फिर से स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालनी है, बट यहाँ का बैंडविड्थ जो है वो m/ts में होके m/2ts हो जाता है. सो राइट नाउ M-array FSK सिग्नल में, इन द केस ऑफ M-array FSK सिग्नल, बैंडविड्थ इज m/2ts. सो कहने का मतलब है फेज में जितना भी आपका वैल्यू था एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी, सॉरी बैंडविड्थ, उसका बैंडविड्थ यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाता है. सो बैंडविड्थ इज m/2ts. सो जो भी वैल्यू आया है m/2ts वो कैलकुलेट कीजिए. एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी का पहले वैल्यू निकालिए प्लीज. एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी का वैल्यू मुझे निकाल के बता दीजिए. इन FSK प्लीज कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी. सर ये आता है 2 log base 2 m/m. So 1. सो नहीं, पहले वो बताओ फिर बताता हूँ. आपका जनरल इक्वेशंस क्या आया? 2 2 log log base base 2 2m m/m. yes. So राइट डाउन एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी का जो जनरल फॉर्मूला आ गया. प्लीज सबके लिए मैं हूँ यहाँ पे हूँ, जो कैलकुलेट कर लिए हो उसके लिए भी हूँ मैं, और जो नहीं कैलकुलेट किए हैं उसके लिए भी हूँ. तो प्लीज सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए बेटू, है ना, जो मैंने अभी बताया आपको उसको मार्क कर लीजिए. सो मार्क करने के बाद हमारा फाइनल इक्वेशन आता है 2 log base 2m/m. सबका आ गया? इतिका आ गया आपका एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी का? ओके. तो अब इसके लिए कैलकुलेट करना है, फिर से कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी फॉर BFSK, फिर 4 array FSK, फिर 8 array FSK and 16 array FSK. Please calculate the expected efficiency of BFSK, 4 array FSK, 8 array FSK and 16 array FSK. सर 1 1 0.75 0.5. 0.5. सो बहुत इजी है ना निकालना. यस सर. अब हम इसको एनालिसिस करेंगे. सब ने निकाल लिया तो मैं एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज बतानी है मुझे आपको सबको. रोल नंबर 19 बेटू निकाल लिया? यस सर, कर रही हूँ सॉल्व में. हाँ सॉल्व कर लीजिए, जल्दी बताइएगा. जैसे सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, आपको बताना है, फिर मैं आगे जाऊंगा.
और इतिका आपका भी सॉल्व हो जाए तो बता देना, बिकॉज बोथ हैव ज्वाइन यस सर। सर 2 वैल्यूज हो गई हैं, फर्स्ट 1 सेकंड 1, सो थर्ड वाली कर रही हूँ। हाँ करो। चलिए तो आपने निकाल लिया। यस सर, निकाल लिया सर। पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 1 है, तीसरी वैल्यू 0.75, चौथी वैल्यू 0.5। वेरी गुड। साध्वी आपने निकाल लिया बेटू? यस सर, निकाल लिया। वेरी गुड। कवनदीप निकाल लिया? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी ना? ओके। सफाली कॉल निकल गया? हाँ जी सर, निकाल दिया। ओके। सो कभी भी आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखना है कि पीएसके सिस्टम है या एफएसके सिस्टम है। यदि एफएसके सिस्टम है तो आपने देखा कि पहले वाले से जो हमारा रिलेशन है और इसमें अलग है ना, जो कि पीएसके का रिलेशन पीएसके का जो रिलेशन है और एफएसके का रिलेशन दोनों में अलग है। पहले में था 0.5, फिर दूसरे में 1, फिर 1.5 एंड 2, और इसमें क्या हो रहा है बेटू? 1, 1, 0.75 एंड 0.5, यानी डिक्रीज हो रहा है। इसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रहा है। देखा, पहले कांस्टेंट एंड फिर डिक्रीज, है ना? राइट ना शेफाली? हाँ शेफाली, अनम्यूट करो प्लीज बेटो। यस सर। हाँ, तो आपको एक एनालिसिस करना है। प्लीज एनालाइज कि दोनों में से कौन सा सिस्टम यूज करें हम। दोनों का वैल्यू लिखो और क्यों यूज कर, दोनों में से कौन सा हम यूज करें। सर प्लीज रिपीट। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि एम एरे एफ एस के सिग्नल और एम एरे पी एस के सिग्नल, राइट? जी। एम एरे एफ एस के सिग्नल और एम एरे पी एस के सिग्नल में कौन सा हम यूज करेंगे? सर मेरे पीएस के सिग्नल। हाँ, कौन सा करेंगे? पीएस के सिग्नल। बोलो बेटा, कौन सा यूज करेंगे? स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी दोनों केस में 1, 1 है बेटा। देखो ये 1 है ना बी फेस के में, और इसमें देख रहे हो बेटा? शेफाली प्लीज अनम्यूट किए रहो बेटा आप। शेफाली तो ठीक है। जसप्रीत अनम्यूट करो बेटू। यस सर। हाँ, आपको दोनों का वैल्यू आ गया ना बेटू? आप जी, पहले जी। वैल्यूज आएगा कि नहीं आ गया पहले बताइए। जी सर। तो यहाँ पे देखो 2 एरे और 4 एरे दोनों में 1, 1 आ रहा है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1। यस सर। तो मैक्सिमम किसी चीज का एफिशिएंसी क्या हो सकता है? 1 भी होता है सर। 1 होता है। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्यूपीएसके में 1 है। देखो यहाँ पे क्यूपीएसके में भी 1 है, यहाँ पे बेटू, है ना? यस सर। और यहाँ पे बीएफएसके में 1 है। तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी दोनों में मुझे 1 मिला है। जी तो जी। हम एमएरे एफएसके यूज करेंगे कि एमएरे पीएसके यूज करना चाहेंगे? कौन सा यूज करना चाहेंगे एज अ जनरल? बीएफएसके यूज करूं मैं, उसमें भी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 है, और क्यूपीएस के है उसमें भी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 है। तो मैं कौन सा यूज करना चाहूंगा बेटा, और क्यों? सेकंड वाला MRFSK। एमएरे एफएसके। FSK। अच्छा एफएसके। नहीं, एक मिनट ध्यान से देखना, ठीक है? एमएरे एफएसके बोल रही हो और मुझे क्यूपीएसके में भी 1 मिल रहा है। तो 4 एरे एफएसके यूज करो, तुम बोल रही हो 4 एरे एफएसके यूज करेंगे, राइट बेटू? जी जी। ओके।
और कौन कमेंट करेगा? आयुषी प्लीज अनम्यूट। बताओ बेटू, कौन सा यूज करेंगे बेटू? हेलो आयुषी, आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो सर आवाज आ रही है बट बीच में ना आवाज आ नहीं रही है, बीच में आवाज क्रैक हो रही है। क्यों हो रहा है? Might be there is some issue. There is some issue with Google Meet, please. So आयुषी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अंकिता? यस सर। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? थोड़ी थोड़ी हो रही है सर। अच्छा, अभी अभी ठीक है? आवाज आवाज आ रही है अभी? यस सर। ओके, सो नो डाउट, यदि यही प्रॉब्लम रहा गूगल मीट्स में तो फिर हम जूम में करेंगे, डोंट वरी। हाँ तो बताइए मैम, दोनों में कंपैरिजन कीजिए। मुझे BFS के यूज करना चाहिए या QPS के यूज करना चाहिए, जबकि दोनों में एफिशिएंसी जो है वो सेम है बेटू। कौन सा यूज करना चाहिए मुझे और क्यों? हाँ बताइए, बताइए मैम प्लीज। अब तो सुनाई दे रहा है ना? सर मुझे पूछ रहे हो? हाँ मैम, आपको पूछ रहा हूं मैं। सर जिनसे पूछा हो तो वो तो म्यूट ही कर ली। हाँ, कौन सा यूज करेंगे मैम? मैं क्वेश्चन फिर से सुनिए मैम। BFS के में या QPS के में बोथ हैव द सेम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 100%। तो दोनों में कौन सा यूज करना चाहेंगे आप और क्यों? सर MRAFS की एफिशिएंसी मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना बेटा, है ना? MRA में दोनों होता है, FS के भी होता है और PS के भी होता है। दोनों केस एनालिसिस करने के ड्यूरेशंस में मुझे दो मॉड्यूलेशंस मिला। एक मिला BFS के और एक मिला QPS के। दोनों में मुझे जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो 1 है दोनों में, है ना बेटू? देख लीजिए आप, जो भी सॉल्व किया हमने, किया ना, दोनों में सेम है। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? BFS के में भी 1 है और QPS के में भी 1 है। कौन सा प्रेफर करना चाहेंगे आप और क्यों? सर PS के, क्योंकि वहां पे बिट एरर रेट कम होगा। ओके, सो QPS के यूज करना चाहेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रेट कम होगा, ऐसा बोलना है आपका, राइट? यस सर। ओके, आयुषी आपका क्या बोलना है? कौन सा यूज करना चाहिए हमें? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सर हाँ, जिसकी तबीयत खराब है वो म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरे से पूछ लेता हूँ। अंकिता, अंकिता पंडिता? यस सर। हाँ, अंकिता तुमने बता दिया। कमनदीप, कमनदीप की तबीयत ठीक नहीं है। ओके, नासिद बताएगा मुझे सबसे, नासिद लास्ट, नासिद बताएगा। नासिद बताइए आप। नासिद प्लीज अनम्यूट एंड बताओ सबको। हाँ, कौन सा यूज करना चाहिए बेटू? मैंने 2 स्टडी किया, देखा आपने, एक फेज का और एक फ्रीक्वेंसी का, है ना? जी सर। तो BFS के में भी 100% था एंड QPS के में भी 100% था, है ना? स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। तो दोनों में से कौन सा यूज करना चाहेंगे हम? सोचो और बताओ। बताइए, अभी अभी आपने सॉल्व किया ना बेटू? जी सर, जी सर। हाँ, सोचिए, बताइए। बताओ जल्दी बताओ, इतना इतना इजी है बेटू? सर मैं आए। नहीं नहीं, अभी रुको, नासिद को बताने दो। सर नो आइडिया सर। अच्छा ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दोनों का निकाला है, BFS के एंड QPS के का। जी सर, जी सर। किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है बेटू? सर BPS के का। QPS के का कि BFS के का? सर QPS के का। QPS के का। सो जी सर। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी दोनों में लगभग सेम है। सर जी। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम चाहते हैं कि ज्यादा चाहते हैं किसी सिस्टम का? सर कम। कम। तो कौन सा यूज करेंगे?
सर QPS का। राइट ना? जी सर। तो यस अंकिता आपने सही बताया था. मैं आई वाज कंफर्म फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स आल्सो. सो राइट नाउ हियर इज द कंपैरिजन 1 1 0.75 एंड 0.5 जो आपने देखा. आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया, पहले वाले सिस्टम में जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो बढ़ रहा था. जैसे जैसे हायर मॉड्यूलेशन की तरफ जाएंगे फेज में तो बढ़ता है बेटू. दिस इज कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन. If you are moving towards higher modulation scheme in phase modulation, then spectral efficiency can increase. But in the case of FSK, spectral efficiency क्या हो रहा है बेटू? डिक्रीज हो रहा है. तो पहला यहाँ पे एक लाइन खींचिए, डिक्रीज. पहले वाले में लिखिए इंक्रीज, दूसरे वाले में लिखिए डिक्रीज. सो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि FSK एंड QPSK में हायर मॉड्यूलेशन स्कीम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पहला. दूसरा कि इवन वी गेट, राइट डाउन यहां पे लिख लीजिए सबको, इवन वी गेट स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 इन BFSK सिग्नल सेम एज QPSK सिग्नल, बट वी यूज QPSK देन BFSK. क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ BFSK हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एज कंपेयर टू QPSK. सो प्लीज नासिफ, समझ में आ रहा है बेटू मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर, जी सर. हाँ, सो प्लीज इसको अच्छे से लिख लीजिए. फिर मैं एक चीज और बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चरित्र क्लियर है बेटू? यस सर, क्लियर. ओके, सो प्लीज इसको कंक्लूड करके लिख लीजिए. इवन वी गेट स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 इन BFSK सिग्नल सेम एज QPSK, बट we will use QPSK as compared to BFSK because probability of error associated with the QPSK is lower than as compared to BFSK. So okay, now मेरा जो सेकेंड एजेंडा है जो आप लोग से डिस्कस करना है, ये हो गया मैथमेटिकल रिलेशन जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए करते हैं. अदरवाइज मिनिमम शिफ्ट कीइंग जो होता है MSK सिग्नल कैसे हम डेवलप करते हैं, क्या चाहिए होता है और कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं. थ्योरेटिकली तो चलो मैं कभी बता दूंगा, बट प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली हम कैसे उसको यूज कर पाएंगे. और आप सबने एक फैक्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है रोल ऑफ फैक्टर. पढ़ा है सबने? कोई बता सकते हो रोल ऑफ फैक्टर क्या करता है? एनीवन? रोल ऑफ फैक्टर? नो सर, ये नहीं पढ़ा एनीवन? है. आइडिया सर. रोल, हाँ एनीवन किसने पढ़ा हो तो बता दो. हेल्प्स इन पल्स शेपिंग. पल्स शेपिंग. हाँ, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? सर साध्वी. साध्वी, हाँ. यस, सो रोल ऑफ फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पल्स शेपिंग, राइट. पल्स शेपिंग मतलब क्या, तो ध्यान से देखना. एट द रिसीवर एंड पे वेरी गुड. पल्स शेपिंग में काम कैसे करता है? सो मुर्तजा प्लीज अनम्यूट. यस सर. हाँ, एट द रिसीवर हम जानते हैं, मैंने बताया है आपको कि हमारा जो चैनल होता है उसका फिल्टर का नेचर क्या होता है, और एट द रिसीवर एंड पे हम कौन सा फिल्टर किस तरह का नेचर यूज करते हैं. तो फिल्टर में जो हमारा जो चैनल होता है वो मतलब यदि एयर की बात करें ना तो वो कौन सा फिल्टर की तरह होगा, या चैनल में हम कौन सा लेते हैं, क्या करते हैं मुर्तजा? एयर जो चैनल में हम क्या करना चाहते हैं बेटू? एयर में कौन सा फिल्टर किस तरह का फिल्टर बिहेव करेगा बेटू और क्यों? सर क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा पूरा. The behavior of the channel is like which type of filter behaves in a channel? मुर्तजा अनम्यूट करो बेटू. यस सर. There are three types of component: transmission, channel, and receiver. Yes, sir. Right. So nature of channel is behavior as a which type of filter? फिल्टर जो चैनल है वो कौन सा फिल्टर की तरह बिहेव करेगा? Anyone? Other one? Anyone? So band pass. Roll number 7. हाँ. Band pass. Yes. बैंड पास. यस, बैंड पास. बैंड पास फिल्टर इसलिए करेगा क्योंकि मुझे लो वाले सिग्नल को भेजना है और हाई वाले को भेजना है, ये मैंने बता दिया था. ओके, वेरी गुड. नाइडा, रोल नंबर 7.
रिसीवर पे कौन सा फिल्टर बिहेव करेगा बेटू? मैच रिसीवर पे मैच फिल्टर सर। मैच फिल्टर, ओके। मैच फिल्टर जो प्रोसेस करते हैं वो फाइनल रिसीव करने से पहले करते हैं, जो जनरेशन डिटेक्शन के बाद जो डिटेक्शन में करते हैं थ्रेशोल्ड के पहले, वो वाला, राइट, वेरी गुड। और आप जो बात कर रहे हैं या हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, लो या हाई फ्रीक्वेंसी बेटू? लो पास फिल्टर यूज करेंगे लो पास फिल्टर। सो नायरा हमेशा याद रखना, एट द एंड रिसीवर पर जो होता है फिल्टर वो हमेशा होता है लो पास फिल्टर। ऑर्डर क्या होता है? लो पास फिल्टर तो होता है, ऑर्डर क्या होता है उसका? साबी, ऑर्डर क्या होता है उस फिल्टर का? ऑर्डर वन। ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए रिसीवर का? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, ओके, वेरी गुड। और कोई बता सकते हो? ऑर्डर कौन बताएगा मुझे? ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, 1 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। चरित्र पढ़ा है ऑर्डर ऑफ द फिल्टर? सर जो पोल्स एनालिसिस होती थी सर, जो मतलब नीचे हाँ, यस यस, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर करके। नहीं तो एक होता है 1/s, फिर होता है 1/s स्क्वायर, फिर होता है 1/s क्यू, है ना? उसे फिल्टर देखते हैं हम कि किस पोल पे कितना आ रहा है, तो याद रखना। और एक डिग्री का डीके मतलब 1 ऑर्डर का कितना डीके होगा, 2 ऑर्डर का कितना डीके होगा, 3 ऑर्डर का कितना डीके होगा? यस सर, पढ़ा है सर। तो एक ऑर्डर का डीके कितना होता है? -20 dB, -20 dB, राइट? सेकंड ऑर्डर का क्या होगा? -40 -40। थर्ड ऑर्डर का क्या होगा? -60 dB होगा ना बेटू? यस सर। मालूम है आप सबको? यस सर। हाँ, चलिए, तो क्लियर है कंसेप्ट? यस सर, यस सर। सर जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा वैसे हाँ, तो आप ध्यान से देखना। अब क्या करो, एक -20 dB का प्लॉट करो, एक -40 dB का प्लॉट करो, एक -60 dB का प्लॉट करो। प्लीज प्लॉट कीजिए तो सब। -20 dB, -40 dB, -60 dB का प्लॉट कीजिए। बंसिका, क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। हाँ, प्लीज प्लॉट कीजिए। तो क्या होता है, हमें चरित्र रिसीव करना है 10, राइट? तो -20 dB या -40 dB या -60 dB, इन तीनों में कौन सा एक शार्प फिल्टर की तरह दिखेगा, बता दीजिए मुझे। तो मैं आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं, आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्लॉट करके बताऊंगा कभी, बट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। सर एक बार फिर से बताइए जल्दी, क्वेश्चन समझा दीजिए। एक प्लीज प्लॉट द ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 ग्राफ। यस सर, वो हो गया सर 2040। ठीक है, तो इसमें से ये बताओ चरित्र कि 1 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इसमें से कौन सा ऑर्डर एक परफेक्ट फिल्टर की तरह दिखता है आपको, लो पास फिल्टर की तरह? सर हायर ऑर्डर सर। हायर ऑर्डर। साथ भी फर्स्ट ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम है बेटू? फर्स्ट ऑर्डर का प्लॉट करेंगे तो जो आपने बोला लो ऑर्डर यूज करेंगे, कोई बात नहीं, आप लो ऑर्डर का बता दीजिए। लो ऑर्डर वाला फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंड वाला कर रहा है कि थर्ड वाला ज्यादा कर रहा है? किसका कर रहा है? थर्ड वाला कर रहा है ना? क्योंकि 1 वाला कैसे हो रहा है, थोड़ा दूर तक जा रहा है बेटू, कट ऑफ जा रहा है ना? सेकेंड वाला थोड़ा नीचे तरफ कट ऑफ आएगा, थोड़ा इधर की तरफ, रेफरेंस लाइन ये है तो थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। रोल नंबर 6 मुर्तुजा, सही बोल रहा हूँ बेटा? मुर्तुजा? यस सर, यस सर। सो पहला कंसेप्ट आ गया इन चैनल बैंड पास फिल्टर, नो डाउट। बैंड पास फिल्टर क्यों? बिकॉज वी विल पास ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो लो एंड हाई, वेरी गुड, हमेशा याद रहेगा। सेकेंड, एट द रिसीवर एंड वी ऑलवेज यूज द लो पास फिल्टर, बट उसमें साथ एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रोल ऑफ फैक्टर। रोल ऑफ फैक्टर, एक ऑर्डर से रोल ऑफ होना है, 2 से होना है या 3 से होना है। सो साथ में हमने क्या देखा, लो पास फिल्टर तो होना चाहिए रिसीवर पे, बट ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर हायर ऑर्डर मतलब हायर होना चाहिए। ओके, यस, सो हायर द ऑर्डर, बिहेवियर ऑफ द फिल्टर इज बिकम्स अ लो पास फिल्टर। बंसिका, क्लियर है? यस सर। ये
अंकिता सही है बेटू? Yes, sir. पक्का ना कि मैं प्लॉट करूं? इतिका समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपकी क्या वॉइस होता है क्लियर नहीं है। जब सिंगल ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा दूर तक जाएगा। 40 dB ऐसे आएगा, -60 dB एकदम शार्प कट ऑफ की तरह दिखेगा चरित्र, सही बोल रहा हूँ? यस सर। सो नासिर, आप हमेशा के लिए क्या बताएंगे आप? चैनल में कौन सा फिल्टर बताइए नासिर, प्लीज कंक्लूड कीजिए सबको, तो फिर मुझे आगे चलना है। सर चैनल में बैंड पास फिल्टर। हाँ, कौन क्यों? सर लो ऑल फ्रीक्वेंसी सर, लो। हाँ, क्योंकि वो सारे फ्रीक्वेंसी को पास करना है। रिसीवर इन पे क्या बेटू? सर रिसीवर में सर लो पास फिल्टर। कौन सा ऑर्डर का? सर हायर ऑर्डर का। हायर ऑर्डर से क्या होता है, उसका रोल ऑफ फैक्टर जो ऑर्डर है वो हायर होगा, तो वो शार्प लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। मानते हैं इस बात को? जी सर। सो राइट डाउन, सबको लिख लीजिए बेटू, रोल ऑफ फैक्टर। हाँ, तो एक चीज और बताना भूल गया था मैं। यस, सो क्या कर रहा है? साथी ने बोला कि स्मूथिंग कर रहा है, लेकिन स्मूथिंग करता कैसे है? यदि थर्ड ऑर्डर था तो दूसरा, देखो अपना पल्स तो लिया ही, दूसरे वाले पल्स को भी थोड़ा सा वैल्यू ले लिया, सेकेंड ऑर्डर में थोड़ा सा कम वैल्यू लिया, बट थर्ड ऑर्डर में एग्जैक्टली थर्ड ऑर्डर में सिर्फ अपना ही वैल्यू लिया। तो स्मूथिंग किस तरह से किया? साध्वी आप ही बताए थे एकदम सही। स्मूथिंग कैसे हुआ? स्मूथिंग बेटू, यदि ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्मूथिंग ऑफ पल्स कैसे हुआ बेटू? नीना, शार्प पल्स होगी ना, शार्प पल्स। हाँ, शार्प पल्स। तो उससे क्या होगा, दूसरा पल्स जो आ रहा था इसमें, वो यदि मान लो तुम्हारा पल्स है और साइड में दूसरा वाला पल्स भी आ रहा है, तो उसको कौन सा फेनोमेना बोलते हैं बेटू? सर इंटरफेरेंस मिनिमम Yes, inter-symbol interference. So role of factor can remove the inter-symbol interference and smoothing the pulse, right? So बहुत अच्छी बात है। So MRA या MSK सिग्नल का सबसे बड़ा एडवांटेज है, कभी पूछा जाए, बहुत भी पढ़ लोगे कभी याद नहीं रहेगा, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है रोल ऑफ फैक्टर इन MSK। एंड बहुत अच्छा बताया था साधवी ने, यस, इट विल smooth the pulse matlab if they will interfere with the other pulse, that is intersymbol interference has been appeared at the receiver end, they can remove with the higher order. So साधवी क्लियर हुआ कि how the smooth can be increased? स्मूथनेस तो करता है, बट कैसे करता है? क्लियर हुआ बेटू? यस सर। रसिका रैना प्लीज अनम्यूट। यस सर। तो देखिए, यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो ये ऐसा है, तो ये थोड़ा दूर जाके कटेगा, सेकंड ऑर्डर है तो थोड़ा नजदीक काट के, और थर्ड है एकदम शार्प फिल्टर की तरह, राइट ना? यस सर। सो कभी भी कोई भी लाइव में पूछे व्हाई यू आर यूजिंग द MRA, व्हाई यू आर यूजिंग द MSK, सो यस, to analyze the every times BPSK, QPSK, QAM is very tough. So to normalize all these analysis, we are using MRA. So MRA will be defined by the two parameters, bandwidth and spectral efficiency. Spectral efficiency is defined by RB by B. And here the two case studies, phase shifting king and frequency shifting king. By applying both the conditions, we will analyze the spectral efficiency. And we have found that in the case of phase shifting king, spectral efficiency increases, but at the same time in the frequency shifting king, spectral efficiency decreases. But at the one level both are same, but we are preferring QPSK as compared to BFSK because probability of error of QPSK is lesser than probability of error of BFSK. This is okay. Now how we can relate the MSK phenomena. So MSK phenomena is directly related with the smoothing the pulse. So what do we mean by smoothing the pulse? We can remove the inter-symbol interference. How we can increase the inter-symbol interference in the channel at the receiver end? Sorry, channel at the receiver end. So by increasing the order of the filter. So that defined is known as role of factor. So write down role of factor. Role of factor is, it is the measure of, it is the
measure of providing transmission bandwidth. It is the measure of, ये मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, it is the measure of providing transmission bandwidth, that is how much smoothing is provided. अंडरलाइन कर लेना, how much smoothing is provided. जो साध्वी ने बोला था, यस, MSK सिग्नल का मतलब ही होता है स्मूथनिंग ऑफ द पल्स. तो लिख लीजिए फिर से, इट इज द मेजर ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, दैट इज हाउ मच स्मूथिंग इज प्रोवाइडेड. पहला, एज, उसके बाद लिख लीजिए सेकेंड लाइन, एज रोल ऑफ फैक्टर, एज रोल ऑफ फैक्टर ब्रैकेट में लिख लीजिए आर, एज रोल ऑफ फैक्टर आर इंक्रीजेस, that as roll of factor R increases means we are providing more smoothness. As roll of factor R increases means we are providing more smoothness. Hence inter-symbol interference are reducing. Hence inter-symbol interference are reducing. So how we can calculate the transmission bandwidth? So calculate transmission bandwidth. Write down, लिख लीजिए. Transmission bandwidth बहुत बार पूछा है, मतलब मुझे लग रहा है कितना पूछा है हम बता भी नहीं सकते, इतनी बार पूछा होगा. तो transmission bandwidth is equal to bandwidth of QPSK. मैं QPSK का लेना चाह रहा हूं तो इसलिए QPSK लिख रहा हूं. Bandwidth of QPSK into 1 plus R by 2. Bandwidth of QPSK into 1 plus R by 2. Let us assume that bandwidth of QPSK is, let us assume that bandwidth of the QPSK signal is FB, right? And roll of factor is maximum is 1, and roll of factor is maximum is equal to 1. So नासित, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या हो जाएगा इस केस में बेटू? ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बताइए. FB plus 1/2. इन दिस केस क्या आया बेटू, फिर से बोलिए. FB plus 1/2. तो FB into 1 plus 1/2 है ना? तो टोटल वैल्यू बताओ ना एक ही बार. 3 FB by 2. The formula is bandwidth QPSK into 1 plus R by 2, that is FB into 1 plus 1/2. तो 3/2 का वैल्यू क्या आ गया? हाँ एकदम सही. तो 1 पॉइंट क्या आ गया? 1.5 FB आ गया. 1.5 आया ना? आया कि नहीं आया? तो हाँ, so final value of, so write down bandwidth, transmission bandwidth for smoothing the pulse. Transmission bandwidth for smoothing the pulse is equal to 1.5 FB. 1.5 FB. तो कोई पूछे कि क्या हो गया इसका, इसमें क्या मतलब स्मूथिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या अच्छा हो गया, तो हमारा जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो बढ़ गया. So write down to smoothness the pulse, to smoothing the pulse, enhancement of the bandwidth, and that is पहले FB था, अब आ गया 1.5 FB. 1.5 FB. So स्मूथिंग करने के कारण ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाता है.